आज हमारे साथ है मिस्टर संदीप जोशी, जो प्रेसिडेंट है ऑफ मुंबई महानगर हैंडबॉल एंड इनवाइटेड रेफरी इन मैनी फॉरेन कंट्रीज। और उनके साथ हम जानेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय हैंडबॉल प्लेयर्स एंड हाउ टू प्रमोट हैंडबॉल फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अब ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। So how did you started developing interest in handball, sir? As you are aware, I'm also a volleyball player. I'm originally a volleyball player, and during my junior college period, when I was playing volleyball, I used to throw ball with one grip, the entire volleyball. I used to hold it in one grip. That I've been doing from standard seventh, and I used to throw the ball. One of the senior college boys told me, "Arey, you can grip this ball. You can easily grip handball. Why don't you give a chance?" And I had a lot of power from the beginning. My shoulders were strong. So I said, okay. So he took me, his name was George Varghese. He was also a volleyball player in our senior college. I was in junior college at that time. So he took me to the coach of handball, and he told that the coach is also Mo Varghese. Both Varghese, in fact, both are Varghese, and उनके दोनों के वजह से मुझे दो वर्गीस की वजह से मेरी हैंडबॉल में एंट्री हुई. And he took me to St. Joseph's ground for handball practice. And he told Mo Varghese sir कि ये इसका power बहुत है, इसको he can grip the ball. So Mo sir asked me to take two penalties. So the moment I attempted a penalty, the goalkeeper literally was afraid. मतलब डर गया था goalkeeper. So I was blindly selected immediately without any hesitation, only for my power. वैसी मेरी एंट्री हो गई हैंडबॉल. Okay. तो सर आपने अपना पूरा करियर जो है वो हैंडबॉल, वॉलीबॉल और स्पोर्ट के लिए दिया. तो आपको कभी ऐसा मतलब पेरेंटल प्रेशर था कि नहीं ये क्या स्पोर्ट पकड़ के बैठे हो, इससे अच्छा कोई कॉर्पोरेट जॉब या ऐसा कोई जॉब पकड़ लो तो आपका लाइफ सेट हो सके, ऐसा कभी आप प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर ऐसा नहीं था. प्रेशर फैमिली प्रेशर था. द रीजन वाज आई लॉस्ट माय डैड व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. तभी मैं ऑलरेडी वॉलीबॉल खेल रहा था. आई स्टार्टेड प्लेइंग. मैं 7वीं से 7th स्टैंडर्ड से वॉलीबॉल खेलता हूँ, और मेरे फर्स्ट कोच वॉलीबॉल के अशोक लोहार सर है. एंड आई एम फ्रॉम अ स्कूल व्हिच हैज बीन चैंपियन फॉर 25 years plus 25 years in Mumbai schools for volleyball. Bansidhar Agarwal Model High School, Badala. And our principal Ramakant Pandey also was very much interested in volleyball. But unfortunately, when I lost my father when I was in 10th, that was on 4th October, first semester itself. And I was the captain of the school team, Captain Ra, or then we took first trophy for inter-school volleyball. तो प्रेशर तो था बिकॉज घर में सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था. मगर मेरी मम्मी जो शी स्टूड लाइक अ वॉल, मतलब दीवार जैसी खड़ी रहेगी मेरे लिए. और उसने कहा कि तुम लोग जॉब मत करो, बिकॉज मेरे कजिन्स बता रहे थे कि दे शुड आल्सो वर्क एंड स्टडी, दोनों करना चाहिए साथ में. माय मॉम सेड, मम्मी ने बताया कि नहीं तुम खेलो, मैं नौकरी करूँ. एंड माय मदर सैक्रिफाइस हर लाइफ ड्यूरिंग दैट टाइम, who never went out for any job. She was a housewife. And because of the calamity which took place on our family, she had to do a lot of tuitions in almost 4 places in Mumbai. So she struggled a lot, and she said, you study, finish your graduation, and then we'll see what happens. So वो एक pressure तो था, मगर that was removed by my mummy. मैंने माँ ने वो प्रेशर निकाल दिया मेरे से. अदरवाइज मैंने एक दिन जॉब भी किया था एक इंडस्ट्रियल स्टेट में. तो मैं फेडअप होके आया 5 बजे शाम को. तो मम्मी ने बोला क्या हुआ. मैंने मेरे से तो नहीं होगा, मुझे खेलना है, और खेलना मेरा एडिक्शन रहा है पहले से. तो मैं बोला ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जॉब करके मेरा खेलना बंद हो जाएगा. तो मम्मी ने बोला कोई तकलीफ नहीं, तुम लोग खेलो, तुम लोग पढ़ाई करो और खेल, मैं नौकरी करूंगी. तो मम्मी स्टार्टेड डूइंग जॉब्स एट अराउंड 4-5 प्लेसेस, गिविंग ट्यूशंस. सो प्रेशर था जो निकल गया था मम्मी की वजह से. And then I kept playing volleyball in junior college, and then handball. Then it started. Then nothing was to be seen behind. मतलब चल ही रहा था parallel. And meanwhile, after graduation, I got job also with Indian Airlines. तो Indian Airlines ने भी काफी support किया. हमारे being a government airline, तो sports club, Indian Airlines regional sports club है हमारा. तो I used to get leaves, sports leave for my participation at district level, state level, and national level. So that helped a lot, in fact. उसी की वजह से ज्यादा मैं आज भी खेल रहा हूँ because of my company, that is Indian Airlines, now which is converted to Air India. Now again it has been converted to Tata Airlines. सर जब आप अपने टाइम पे जब हैंडबॉल, वॉलीबॉल खेलते थे लाइक इन 80s एंड 90s, और आज का जो कंपटीशन है, जो तब का जो लेवल था और अभी का जो लेवल है, तो उसके बीच का अगर आप कुछ डिफरेंस, चेंजेस कुछ बता पाए?
चेंजेस तो फास्ट हो गया है दोनों गेम. वॉलीबॉल भी फास्ट हुआ है, हैंडबॉल भी फास्ट हुआ है, काफी फास्ट हुआ है. हैंडबॉल वाज ओरिजिनली डोमिनेटेड विद पावर एंड हाइट बॉडी एंड ऑल. आज जरूरत नहीं है. इफ यू आर इवन थिन यू कैन रिप्रेजेंट योर स्टेट और कैन बी इन द इंडियन टीम आल्सो, बिकॉज स्विफ्टनेस बढ़ गया है. आज 50 मिनट में दोनों टीम के 50-50 गोल्स भी होते हैं. पहले इतने गोल्स नहीं होते थे. तो इट हैज बिकम वेरी फास्ट बोथ वॉलीबॉल एज वेल एज हैंडबॉल. वॉलीबॉल में जैसा रैली सिस्टम था, अभी टेबल टेनिस काउंटिंग हो चुका है. तो टेबल टेनिस में क्या होता है, यू नेवर नो कौन सी टीम जीतेगी. एक मिस्टेक आप करोगे तो आपका पॉइंट चला जाता है. वॉलीबॉल सेम वे हैंडबॉल में भी इतना फास्ट हुआ है गेम कि द मोमेंट इधर एक गोल हुआ तो बाय द टाइम आप पलक झुकेगा भी नहीं तब तक उधर एक गोल हो जाता है. तो इट इज वेरी फास्ट ना. काफी फास्ट हुआ है. इतना ये मैसिव चेंज है दोनों गेम्स में. काफी फास्ट हुआ है और उसकी वजह से यू रिक्वायर लॉट ऑफ फिटनेस हैंडबॉल के लिए भी और वॉलीबॉल के लिए. थोड़े उसमें वॉलीबॉल में एक ड्रॉबैक ऐसा हुआ कि आजकल पांव से भी उठाना अलाउ किया है. तो डाइविंग कंसेप्ट जो था वॉलीबॉल का, विच वाज आई फील इट्स एन मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वॉलीबॉल, टू डाइव एंड डिग द बॉल फ्रॉम ग्राउंड. पूरा बॉडी लेंथ भी हम लोग करते थे. आज यू विल फाइंड वेरी रेयर कोई डाइव नहीं मारता आज, बिकॉज पांव से उठाना अलाउ किया है. तो वो एक थोड़ा ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से वॉलीबॉल. हैंडबॉल तो फुल फास्ट गेम हो गया है. नथिंग टू. ये मैसिव डिफरेंस है मगर दोनों गेम्स विच आई बीन फेसिंग. लाइक अभी तो मैं खेल सकता हूँ मगर नॉट कॉम्पिटिटिव. बट आई डू कोचिंग एंड ऑल. एज आई टोल्ड यू, आई बीन कोच फॉर मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस. एनएम कॉलेज के जूनियर सीनियर कॉलेज दोनों वॉलीबॉल हैंडबॉल का कोच हूँ लास्ट 10-15 साल से. बॉम्बे कैम्ब्रिज अम्बोली वेस्ट विच आर चैंपियन इन मुंबई स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फॉर मेनी ईयर्स इन बिटवीन. उनका कोच रहा हूँ 15-16 साल. एच वाडिया स्कूल में कोचिंग किया हूँ जो अंधेरी में है. उन लोगों ने भी ऑन डेब्यू एमएसएस का टाइटल मारा हुआ है. देन आई वाज लास्ट 2 years बैक बिफोर लॉकडाउन आई वाज कोच फॉर राजंस विद्यालय. काफी जगह कोचिंग किया. एसएनडी यूनिवर्सिटी को किया हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी को किया हूँ, मुंबई सीनियर टीम को किया हूँ वॉलीबॉल में हैंडबॉल में. तो दोनों गेम में आई एम पैरेलली एंजॉयिंग बोथ द गेम्स and it has become my addiction. So I don't think I will ever stop playing both the games till I die. सर आप काफी सारे कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज में इनवाइट थे एज अ रेफरी, और सर आप एज एन इनवाइटेड रेफरी थे इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंडबॉल टूर्नामेंट नोन एज पाटाइल कप. तो सर सिंस 2001, so since last 20 years you are participating in that tournament. तो सर वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? Mind blowing. There's no word. One has to go and see those tournaments. वो देखने का जो नजारा है वो पाटिले कप का, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव नेवर सीन, आई विल नेवर सी एनीथिंग लाइक दैट. कोई भी टूर्नामेंट अराउंड 20,000 पार्टिसिपेंट्स, 1100 से 1200 टीम्स, ईच कैटेगरी फ्रॉम अंडर 10 से लेके अंडर 21 तक. इट इज अ मैसिव इवेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंडबॉल इवेंट. आई हैव टेकन अ ओथ देयर दैट आई विल विजिट पाटिले कप till I die. वो मेरा उनका गूगल साइट पे भी लिखा हुआ है कि I will come here till I die because it is worth. Any handball player in the world must visit Partile Cup, and if possible he should play the tournament. Sometimes I feel I was unlucky because we didn't get time. I was almost 37, 38 when I went for the first time as a coach of Mumbai handball team. But चलो लाइफ में nothing better late than never जो कहते हैं. तो चलो 38 में भी जाना भी एक नसीब का बात था. और इसमें पूरा श्रेय जाता है अशोक लोहार सर जो हमारे प्रेसिडेंट थे तब, लेट अशोक लोहार सर जो मेरे फर्स्ट कोच भी रहे वॉलीबॉल पे. उनके पास एक मैगजीन पड़ी थी और उनको एक्चुअली हम लोग देखने गए थे. उनको हार्ट अटैक जैसा हुआ था तो हम विजिट किए थे हमारे एसोसिएशन के लोग, मैं, रणधीर सिंह और सेरिल डिसूजा. एंड एक मैगजीन पढ़ा था तो मैगजीन में उसे पढ़ा तो उसमें ऐसे लगा था कि पाटिले कप है वर्ल्ड लार्जेस्ट. तो हम लोगों ने सेरिल डिसोजा ने उनसे इनविटेशन मांगाया और मिल गया हमें इनविटेशन एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग. अभी 20 साल से रेगुलर जा रहे. वी हैव बीन अवॉर्डेड गुनाक्विस्ट अवार्ड आल्सो इन 2018, 4 of us from Mumbai, myself, रणधीर सिंह, साई कृष्ण आटंगड़े एंड सेरिल डिसोजा. हम चारों को 1000 euro अवार्ड भी दिया पाटिले कप में फॉर पार्टिसिपेशन फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 18-19 years. तो दे फेलिसिटेड भी किया एक गुनाक्विस्ट मेमोरियल अवार्ड, fundraising award which they give to all. They select a country every year considering the promotion of the game. उस सिलसिले में. Okay. सर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई महानगर हैंडबॉल. तो सर आपके हिसाब से ऐसे कोई प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं जिसकी वजह से हैंडबॉल
का जो डेवलपमेंट है वो और अच्छे से हो सके और फास्ट और उसका ग्रोथ हो सके सर? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। डेवलपमेंट बनाने के लिए नील बेसिकली फंड्स चाहिए रहते हैं। डेवलपमेंट तो किसी भी चीज का हम लोग कर सकते हैं, मगर अगर फंड्स का रिस्ट्रिक्शन होगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। एज यू नो, हर चीज में पैसा। आज टर्फ का एक बुकिंग भी करो तो 1 घंटे का 2800-3200 रुपया लेते हैं। यस। तो फंड्स इज अ बिग इशू। इफ यू हैव फंड्स, प्रोग्राम्स तो काफी लाइंड अप है हमारे पे। एंड फॉर्चुनेटली फॉर लास्ट इन दिस लास्ट 3 years आफ्टर लॉकडाउन, we already had 3 youth tournaments in Mumbai for under 15 boys and girls and men's and women चल रहा है, और it is picking up slowly and steadily, but I am sure it will come up. 11-12 दिसंबर को भी कोई टूर्नामेंट है ऑल कैटेगरीज में। फिर उसके बाद हम लोग भी और एक टूर्नामेंट कर रहे हैं। तो टूर्नामेंट्स होना जरूरी है, टेलीविजन पे दिखाना बहुत जरूरी है, विच इज नॉट हैपनिंग। लाइक सी, क्रिकेट तो पॉपुलर है इंडिया में, रिलीजन है, गली गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसी तरह फुटबॉल हैज बिकम पॉपुलर बिकॉज यस। जितने टर्फ मुंबई में आप देखोगे फुटबॉल बुक हो जाता है, सब बच्चे फुटबॉल Yes. खेलते हैं। द रीजन इज फुटबॉल इज बीइंग शोन कंटिन्यूअसली ऑन टेलीविजन। वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आप सोचो, प्रो कबड्डी जैसा गेम जो सिर्फ एशियन गेम है, वो इतना पॉपुलर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रो कबड्डी। यस। प्रो कबड्डी क्यों हुआ? बिकॉज फंड्स है करके, करोड़ों रुपया लग रहा है करके प्रो कबड्डी हुआ। ऐसे करोड़ों रुपया लग के हैंडबॉल का लीग करोगे तो इट विल हिट like anything, I'm telling you, because so attractive, so fast, so attractive, continuous, every second there is an action in this game. मतलब Yes. क्रिकेट में तो एक आधा स्लिप में डाइव कैच किया तो उसका हजारों फोटो निकलते, हजारों स्लो मोशन 1000 बार दिखाते हैं। ये तो हैंडबॉल के लिए कुछ नहीं, कंटिन्यूस डाइविंग, शूटिंग, रोल सब चालू रहता है। सो इट इज एक्शन पैक्ड गेम, एक्शन पैक्ड, नो डाउट। As I told you, funds नहीं है इसके लिए। Basically आउटडोर इंडोर गेम है and we are still been playing outdoor. That's a no drawback I can say tell you, because if you play indoor you can still play faster. आज हमारे महाराष्ट्र के players नेशनल लेवल पे भी जो खेलते हैं, they are playing still on the outdoor court. हालांकि हाल ही में 1-2 नेशनल्स जो हुए इंडोर हुए, मगर इंडोर खेलना और आउटडोर खेलने में काफी फर्क हो जाता है। इंडोर में ऑफिशियली ग्लू अलाउड है लगाने को, हाथों फिंगर्स को यू कैन अप्लाई ग्लू, और ग्लू से क्या होता है, ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है। बस उसके लिए उसकी प्रैक्टिस भी लगती है। डायरेक्टली एक दिन ग्लू लगा के बॉल करोगे तो बॉल नहीं जाता छोड़ा नहीं, यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। और अगर हमको एशियन लेवल और इंटरनेशनल लेवल या ओलंपिक्स लेवल में जाना है तो ग्रास रूट लेवल, दैट इज स्कूल लेवल से ही वी शुड स्टार्ट इंडोर हैंडबॉल विद अप्लाइंग ग्लू। दोस बॉयज शुड प्ले। आई एम टेलिंग यू, वी विल गेट सॉलिड रिजल्ट्स इफ वी डू दैट, बट उसके लिए पैसे की जरूरत है। यस, कंप्लीटली एग्री सर। या सर, अभी अभी आपने कहा कि जैसे फुटबॉल और क्रिकेट इतना पॉपुलर है, तो सर उस हैंडबॉल की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि सिर्फ एक यही मीडियम है कि हम टेलीविजन के थ्रू दिखाएं या थ्रू सोशल मीडिया दिखाएं, या और भी अदर वेज है इसको प्रमोट करने की? है सोशल मीडिया में तो काफी अभी तो काफी पॉपुलर हो रहा है बिकॉज ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सएप। यहाँ वहाँ वीडियोस हम लोग शेयर कर सकते हैं। हमारे जमाने में तो एक वीडियो मिलना मुश्किल था। मुझे तो कम से कम 20 साल लगे एक वीडियो हासिल करने के लिए, जब मुझे 2001 में यूरोपियन हैंडबॉल फेडरेशन ने टॉप कोचेस सेमिनार 200 कोचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इनवाइट किए थे लुक्समबर्ग में, जो इनवाइट किया उस समय 2001 में। ऑलमोस्ट 21st ईयर ऑफ माय हैंडबॉल करियर, आई कुड सी वन वीडियो कैसेट ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल। मतलब 22 साल लगे, 21 साल लगे मुझे वो ट्रेनिंग कैसेट हासिल करने। होता क्या है, कैसेट्स आती है, मैं कोई शेयर नहीं करता। आज की डेट में अगर बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड ऑल you can browse any drills or any championship on YouTube, you can see it. पर पहले क्या था कि YouTube नहीं था तो it was difficult। जिसके हाथ में कैसेट होता तो कोई शेयर नहीं करता। Yes. Because then you have to go to him always. So that was a drawback, but then that's human being, you can't help it. कोई भी सोचता है कि मेरे पास वीडियो तो मैं क्यों शेयर करूँ। This is the drawback, Yes. but can't help it. अभी के टाइम पे तो आप अभी भी यूट्यूब में डालो वॉलीबॉल हैंडबॉल ड्रिल्स, वॉलीबॉल ड्रिल्स, कुछ भी डालो फटक से आ जाता है, फ्री। Yes. देयर आर पेड ड्रिल्स का साइट्स भी है जिसमें आप पे करो डॉलर्स में, आपको साइट्स वो लोग कैसेट्स भेजते हैं। डू ऑनलाइन है, कोविड की वजह से तो ऑनलाइन ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है, तो ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो। तो ये फैसिलिटी ऑफ यूट्यूब, गूगल इज अमेजिंग, दैट इज हेल्पिंग लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स। कोई एनी फॉर दैट मैटर एनी गेम, नॉट ओनली हैंडबॉल वॉलीबॉल, कोई भी गेम में आप कुछ भी डालो गूगल में तो मिल जाता है, ड्रिल्स मिल जाते। पहले कैसे होता था कि हमारा कोई एक प्लेयर महाराष्ट्र सिलेक्ट होगा, नेशनल्स जाके आएगा,
फिर वो बताएगा मैंने नेशनल्स में क्या किया, देन वो हमको सिखाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s। तो Yes. 80s में ऐसा हाँ कि जो हाँ ये नेशनल है तो नेक्स्ट डे हमको आके जो वहाँ उसने सीखा है वो यहाँ अपने को सिखाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आज Yes. वो नहीं है, आज वो सीन नहीं है। तो बच्चों को इनफैक्ट बहुत एडवांटेज है एंड पेरेंट्स शुड टेक दिस एट अ गुड लेवल। मतलब अगर पेरेंट्स लोगों का सपोर्ट होगा तो इट्स बेटर। होता क्या है, पेरेंट्स बोलते हैं इसका फ्यूचर क्या है। इंडिया में क्या होता है, हर चीज का फ्यूचर देखते हैं। क्रिकेट खेलेगा तो तेंदुलकर Yes. बनेगा, तो 1 लाख लोग क्रिकेट का ट्रायल्स देते हैं कि बाबा मेरा एक बच्चा तेंदुलकर बने। वो हैंडबॉल में नहीं हो रहा है, बिकॉज हैंडबॉल में ऐसे अपने पास कोई स्टार प्लेयर्स नहीं जो ओलंपिक्स Yes. के लिए। क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर स्टिल प्लेइंग आउटडोर। हम लोग अगर इंडोर चालू करें तो 10 साल में अपने को कुछ रिजल्ट्स आ गए एशियन चैंपियनशिप में, एशियन Okay. लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल, मगर वो हो नहीं रहा है। प्रयास तो जारी है फेडरेशन का कंटिन्यूअसली, मगर एज आई टोल्ड यू मेरे ख्याल से फंड्स इज अ बिग प्रॉब्लम। बालेवाड़ी बनी है 1994 में नेशनल Yes. गेम्स में, तो एट दैट टाइम वी वर सो हैप्पी, चलो एक इंडोर स्टेडियम हो गया। मगर the what government or what the federation of this state federations should have done at that time, all tournaments should have been conducted there, whether it is under 12, under 14, under 16 seniors, and सब कैटेगरी के इंडोर में ही खिलाना चाहिए। और ये फेडरेशन ने सब कंटिन्यूस रखना चाहिए, सब इंडोर ही खेलो जो इंडोर गेम्स है। आज 46 ईयर है मेरा वॉलीबॉल का, मैं आज तक इंडोर नहीं Oh. आउटडोर ही खेला। हम लोग मट्टी में खेलना, हम लोग तो बेयरफिट खेलने वाले प्लेयर्स। आज शूज है मगर आज उम्र नहीं। Yes. तो चलता है, नथिंग टू रिग्रेट। आज जेवलिन थ्रो में Yes. अपने गोल्ड मिला है बिकॉज वी हैव स्पेंट करोर्स ऑफ रुपीज ऑन हिम। एक जेवलिन 1.25 लाख रुपए का है उसका, 1.25। आज वॉलीबॉल 1200 रुपए का कोई लेता नहीं है। मैं जहाँ खेलता हूँ वहां मैं ही डोनेट करता हूँ। 1200 रुपए का एक बॉल है। जेवलिन 1.25 लाख रुपए की उसकी जेवलिन। उसके बाद मेरे कहते 50-60 जेवलिन थे, 3.5 या कुछ उसका करोड़ों कुछ व्हाट्सएप पे आया था। आई डोंट नो हाउ इट इज ट्रू, मगर इतने करोड़ रुपए खर्चे करें, जर्मन कोच आएगा वो सिखाएगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा ही। Result सेम आएगा. यू डू Yes, sir. फॉर ऑल, हाँ यू डू फॉर ऑल गेम्स, यू विल गेट रिजल्ट्स, देयर इज नो डाउट। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे डिसिप्लिन से तो मतलब ही। आप प्रैक्टिस करो, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड विद द गुड टेक्निक्स एंड ऑल करो तो और अच्छा है। हम लोग जाते हैं यूरोप में, जब ये उधर देखते हैं हर स्कूल में एक इंडोर स्टेडियम। हालांकि उनका ड्रॉबैक है कि उनके पास 6 महीने स्नो गिरता है, दैट इज व्हाई दे आर प्लेइंग इंडोर। Yes. They are playing indoor because they have a problem, because they have snow for 6 months, तो उनको स्कोप ही नहीं आउटडोर खेलने 6 महीने। So that is why Yes. they have developed indoor. अच्छा, इंडोर डेवलप करने फेडरेशन उनके हाथ में है, इंटरनेशनल फेडरेशन, सो दे रूल। सो वो लोग बोलते ग्लू लगाओ। आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ कि ग्लू लगा के खेलते हैं हैंडबॉल। हैंडबॉल अगर रनिंग पे भी आप ग्रिप करोगे हैंडबॉल तो वो ग्रिप हो जाता है, बिकॉज उसमें भी ग्लू रहता है, हाथ में ग्लू चिपक जाता है बॉल, सो यू कैन होल्ड एंड शूट। जो हम लोग बचपन में ट्राई करते थे कॉलेज लेवल में, तू फेक बॉल में कोशिश करूँ पीछे से पकड़ने की, कभी कभी कभार कुछ वीडियो देखा होगा, वो तभी समझता नहीं था कि ग्लू लगाते। हम लोग तो अपना स्वेट या Yes. स्पीड से हम लोग उसको ग्रिप कर रहे हैं कोशिश, बिकॉज वी डोंट हैव दोस बॉल्स आल्सो ना। इधर अपना इंडिया में क्या बेचा जाएगा, आउटडोर गेम है तो आउटडोर बॉल ही बेचा जाएगा, इंडोर बॉल नहीं बेचा जाएगा। ये सब को रिलेटेड थिंग्स है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट तो यही है गवर्नमेंट से कि इट शुड बी इंडोर इंडोर इंडोर, अदरवाइज यू डोंट प्ले दिस आउटडोर गेम्स। उसको मतलब उसको मतलब फिर ऐसे टाइम पास के लिए खेलो, फिटनेस के लिए, Yes. नो नथिंग टू कॉम्पीट। आज अगर मैं आपको बोलूं मैं हैंडबॉल का, तो तुम्हारा पहला सवाल रहेगा अरे इंटरनेशनल में हैंडबॉल का क्या रैंकिंग है इंडिया का। तो इंटरनेशनल छोड़ो, एशियन रैंकिंग में ही नहीं तो ओलंपिक्स जा ही नहीं पाओगे, बिकॉज तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता नहीं है। जो खेलने का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल में है वो अगर आप दिलवाओगे प्लेयर्स को, तो मैं तो लिख के देता हूँ 100% अपने पास अच्छे प्लेयर्स बने। वी हैव इमेंस टैलेंट। जब मैं पहली बार गया था 2001 में लुक्समबर्ग में, जब सब जन का इंट्रोडक्शन हुआ तो देयर इज संदीप जोशी फ्रॉम इंडिया बोले, तो सब एवरीवन वाज शॉक्ड, देन दे स्टार्टेड लाफिंग कि इंडिया में भी हैंडबॉल खेलते हैं। तो उनका सवाल था कि इंडिया में कितने टीम्स है, मतलब कम से कम मिनिमम 1000-2000 टीम्स। तो दे वर शॉक्ड। अब 1000 टीम्स कैसे होगी, 36, 34, 35 स्टेट है, हर स्टेट में 10 टीम 20 टीम है, कॉलेजेस की टीम है, यूनिवर्सिटी टीम है, ऐसा मिलेगा आराम से 1000 के अपने पास 2000 टीम फ्री हो सकती। Yes. मगर वर्ल्ड में मालूम ही नहीं इंडिया में हैंडबॉल को, बिकॉज वी आर नॉट इन देयर चार्ट ना। आज इंडिया क्रिकेट में मालूम है क्यों कि अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, उनको पता ही नहीं। कल को हम आप बोलेगे ये पोलैंड की क्रिकेट की टीम है तो अपनी बॉम्बे की रणजी ट्रॉफी टीम भी उनको हराएगी।
हम्म। तो वो हिसाब से इट शुड बी, आई डोंट नो, इट शुड बी प्लेड इंडोर ओनली, इट शुड नॉट बी प्लेड आउट। उधर ही हम लोग मार खा रहे हैं। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे मैं बोला उसको 1.25 लाख रुपए का जेवलिन उसको दिया है, ऐसे सब स्कूल के बच्चों को दो जो जेवलिन उधर यूज होता है कंपटीशन। हम यस। लोग आज बैडमिंटन में क्लिक हो रहे हैं बिकॉज बैडमिंटन का जो सरफेस है इट इज सेम सरफेस वेयर सिंधु एंड ऑल आर कॉम्पिटिंग, राइट, इंडोर, यस। राइट। टेनिस में भी, टेनिस के तो हमारे आधे प्लेयर्स तो वहीं खेलते हैं यूएस में, इधर खेलते ही कोई नहीं। तो वो उधर हम्म। खेलेंगे तो वो परफॉर्मेंस मिलेगा ही, लॉन टेनिस वहां खेलेंगे। क्रिकेट में भी ये मड विकेट है, कल को उन लोगों ने टर्फ विकेट निकालेगी तो हो सकता है हम लोग पीछे भी जाएंगे। कोई ऐसा विकेट्स बनाएंगे जो विच इज कॉस्टिंग हेवी, एंड देन अपने पास वो विकेट्स आएंगी नहीं। जैसा फॉर इंस्टेंस हॉकी में क्या हुआ, हॉकी वॉज ग्रास आउटडोर गेम, राइट, ग्रास पे खेलते थे, वी वर चैंपियंस। यस। अभी 30 साल के बाद हम लोग मेडल लिस्ट में वापस आए, बिकॉज टर्फ इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया में टर्फ ही कम थे स्टार्टिंग में 90s में। हाँ, मुंबई में एक ही टर्फ था बीएचए का। तो टर्फ में खेलने हम्म। के लिए कितने जन जा सकते हैं, आम आदमी नहीं जा सकते, जो रैंकिंग प्लेयर्स है, जो मुंबई के टॉप प्लेयर्स है वही जाके खेलेंगे। तो यस। ऑटोमेटिकली उसका लिमिट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। आज हाँ। हम लोग वापस टर्फ पे आए बिकॉज आज सब जगह टर्फ पे ही हो रहा है। फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स से आस्ते 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 टर्फ आ गया। तो अभी टर्फ पे खेलते तो पर रिजल्ट आना चालू है। तो जो इंटरनेशनल कंपटीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाता है फॉर एनी स्पोर्ट दैट मैटर, नॉट ओनली वॉलीबॉल हैंडबॉल, एनी स्पोर्ट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्कूल लेवल से मिलेगा हर बच्चे को, तो आई कैन एश्योर अपने पास तो पॉपुलेशन तो मैसिव है, टैलेंट की कमी नहीं है, अपने पास तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आराम से हम लोग वी कैन कोप अप विद इंटरनेशनल लेवल, देयर इज नो डाउट। ओनली थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ यूज करता है वो बच्चों को दे दो स्कूल लेवल से, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाए। आप चाहो बोलोगे आउटडोर खेलो और जाके इंडोर परफॉर्मेंस दो तो नहीं। यस। एंड वी डोंट केयर फॉर लाइफ, वी डोंट केयर फॉर सेफ्टी। हम लोग आज भी मैं सुबह जो खेल के आया 3 घंटे इस्माइल यूसुफ कॉलेज में, वी प्ले ऑन अ सीमेंट कोर्ट। सीमेंट ओके। कोर्ट इज सो इंजरियस टू योर नीज। मगर अभी क्या यस। करें, ग्राउंड ही नहीं है तो क्या करें। खेलना पैशन है, एडिक्शन है, खेलना तो चाहिए, तो हम लोग सीमेंट में भी डाइव मार लेते, विच इज वेरी रिस्की, बट हम लोग करते बिकॉज यू गॉट यूज टू। वही अगर इंडोर सरफेस मिले तो और अच्छे परफॉर्मेंस मिल जाएगा, लीप मिलती है, जंप ज्यादा मिलती है दोनों गेम में। दोनों गेम के बारे में बोलो, बास्केटबॉल देखो, आज बास्केटबॉल भी अच्छा पॉपुलर था बॉम्बे में, मगर स्टिल वी आर ऑन द सीमेंट कोर्ट ओनली, वी आर नॉट डूइंग इंडोर। यस। आप देखोगे कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट बॉम्बे में जितने भी है, बास्केटबॉल भी वैसे काफी पॉपुलर है बॉम्बे में, मगर इट इज ऑन सीमेंट कोर्ट, इट इज नॉट ऑन इंडोर इंडोर सरफेस, विच आई फील दे शुड डू दैट। इसमें नी इंजरी काफी हो जाती है, वो सब चीज के लिए फंड्स की जरूरत है डील, और बिकॉज पैसे के बगैर गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव। अभी देखो जॉब्स नहीं है, नॉर्मल जॉब्स नहीं है, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट तो छोड़ ही दो, तो कहाँ से स्पोर्ट्समैन पैदा हो। अगर यस। स्पोर्ट्स, आज मैं खेल रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट्स कोटा का जॉब नहीं था, फिर भी मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मेरी एडिक्शन हो गया, आई एम लव फॉर बोथ द गेम्स, सो आई एम बीन प्लेइंग। तो ऐसे आपको हजारों में एक दो जन ही मिलेंगे जो बिन मतलब के खेल रहे, कुछ ओनली फॉर पैशन एंड लव ऑफ। तो ऐसे इंडोर स्टेडियम गवर्नमेंट ने बांधने चाहिए, एंड वो हिसाब से दे शुड एनकरेज स्पोर्ट्स। अरे तो फिर अभी देखो जॉब ही नहीं होंगे तो कौन खेलेगा। जो यस। अमीर बच्चे हैं उनका जिसका धंधा है, वो लोग तो पैशन के लिए खेलते हैं, लव के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू गेट जॉब, दे विल नॉट एक्सेप्ट जॉब्स इन पुलिस, बराबर। यू आर अ गुड हैंडबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर, यू हैव चांस ऑफ गेटिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कहाँ है, पुलिस में, आरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, फिर बॉर्डर फोर्स में है। तो आप थोड़े वहां जाओगे, आपका तो बिजनेस होगा, तो आप थोड़ा छोड़ो अपना, खेलेंगे टाइम पास। तो जब तक आगे सिक्योरिटी कुछ नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सिर्फ एक क्रिकेट में आईपीएल में करोड़ों रुपए मिलता है, एक मैच यस। खेलो 500 करोड़ आ गए तो लाइफ बन गई। तो वो लीग्स अपने पास अभी चालू होने वाले थे लास्ट ईयर, मगर कोविड के वजह से 2 साल अभी ऐसे लीग्स होते रहेंगे। हम लोगों ने एक लीग की थी 2016 में सोलापुर में, बट जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला उसमें। ओके। हैंडबॉल लीग किया, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए थे जैसे आईपीएल स्टाइल, यस। मगर जो होना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं मिला, बिकॉज फंड्स नहीं ना। बेसिक मैं वही बोल रहा हूँ, घूम फिर के पैसे के ऊपर ही मामला आता है। पैसे के ऊपर आता है। यस। अब हाँ, पैसा है तो अब 10 इंडोर स्टेडियम मान लो इधर बॉम्बे में। बॉम्बे तो हम्म। वर्ल्ड्स मोस्ट कैपिटल सिटी है, एक इंडोर स्टेडियम नहीं, स्टेडियम बना के बच्चों को खेलने दो, फैसिलिटी तो दो कम से कम। फैसिलिटी दोगे तो होगा ना, नहीं तो नहीं होगा।
यस नहीं तो स्पोर्ट्स बंद हो जाएगा आस्ते आस्ते। हाँ, कितना प्रेशर करोगे बच्चों पे? बच्चों की माँ को क्या जवाब दोगे? बच्चे की माँ बोली उसका एग्जाम है, तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं, एग्जाम दे दो, बाद में खेलने का बाद में। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, एंड गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड जॉब्स ऑल्सो एट द सेम। जिससे तो कोई गरीब बच्चा होगा, अच्छा खेलता होगा, उसको वो क्या 17-18 साल तक खेलेगा, कल को उसको जॉब नहीं, पैसा भी तो कमाना है, जॉब ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो? मुश्किल हो जाता है। नेवी में है, आर्मी में है, उसके रिक्रूटमेंट, मतलब सब एवरीवन डजंट ऑप्ट फॉर दैट। पुलिस में है, पुलिस में काफी हमारे पुलिस के प्लेयर्स है, बॉम्बे में भी है, नायगांव पुलिस ग्राउंड में, दे आर आल्सो प्लेइंग आउटडोर ओनली। ऑल ऑफ देम आर नेशनल प्लेयर्स, मगर आउटडोर ही खेलते हैं। अच्छे खेलते, काफी अच्छे खेलते, मगर आउटडोर खेलते। तो वही, जब तब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा इंटरनेशनल लेवल का, तब तक रिजल्ट मुश्किल। टैलेंट तो मैं आपको बताता हूँ, टैलेंट तो काफी है, टैलेंट की कोई कमी नहीं, अपने को रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स है वो मिलना चाहिए। यस यस सर, काफी अच्छा था आपके साथ डिस्कस करके, काफी कुछ थैंक यू। जानने मिला सर। एक्चुअली में या हैंडबॉल, तो अगर मैं सर सच बताऊं तो एक्चुअली मुझे भी हैंडबॉल नहीं पता था, लेकिन जब नहीं मुझे कि आपका रेफरेंस आप हाँ, आप किधर भी जाओ, कुछ तो बोले अरे मैं हैंडबॉल, अरे हैंडबॉल क्या है? हैंडबॉल फर्स्ट हाँ क्वेश्चन ये होता है, क्या है हैंडबॉल? अजी आज क्या हुआ, यूट्यूब में तो मैं फटक से हैंडबॉल डालू तो फटक से उसको दिखा सकता। 20 साल पहले यस ये भी पॉसिबल नहीं था। हम लोग जब भी टूर्नामेंट नहीं था, ऑर्गेनाइज यस करते थे तो स्पॉन्सरशिप के लिए जाना पड़ता था, घूमना पड़ता था, काफी घूमना पड़ता था, जहाँ जाके 1,000-2,000 मिलते थे, फिर वो पैसे से हम लोग टूर्नामेंट करते थे। तो हैंडबॉल, अच्छा वो ऊपर बास्केट में डालने का, नहीं नहीं वो बास्केटबॉल है, फिर वो नेट लगा, नहीं नहीं वो वॉलीबॉल है, फिर उनको बताना पड़ता है हैंडबॉल क्या है। तो ये यस अब ये पब्लिसिटी कैसे करोगे? पैसा होगा। यस अब 10-100 करोड़ पे लगा दो, टीवी पे एक चैनल लगा दो, रोज हैंडबॉल दिखाओ दिन भर। 2 करोड़ की आबादी में कम से कम 10% भी अगर देखेंगे तो कितना होगा लोगों का व्यूइंग? 10% ऑफ टू यस करोड़ 20 लाख लोग देखेंगे रोज। 20 लाख लोग अगर रोज देखेंगे तो महीने में 10 लाख प्लेयर तैयार हो जाए। हाँ यस और उनको दिखाओ 24 घंटा चैनल। टर्फ के वजह से थोड़ा भी एक एटीट्यूड थोड़ा लोगों का चेंज हुआ, पेरेंट्स का भी। और भाई अच्छा सरफेस मिल रहा है, थोड़ा नो नो नो, दे डोंट माइंड पेइंग। थोड़ा यस ही, थोड़ा इतना मेंटल कैपेसिटी हो गया लोगों का, चलो पैसा भर के हम्म खेलेंगे, ये लेवल तक आ गए। सो यस सेम सर सेम थिंग इफ ऑल पेरेंट्स डू, बाबा हाँ इसको कोचिंग दो कि आई डोंट माइंड पेइंग फॉर दिस। पब्लिक मूवी देखने के लिए मैं जब भी स्कूल का कोचिंग लेता था सुबह, आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, आई वॉज टेकिंग कोचिंग ऑल्सो फॉर बॉम्बे के। तो सुबह सुबह जाके 6 बजे पूछूं, चलो किसने कौन सा फर्स्ट आज का लेटेस्ट मूवी किसने देखा, सब हाथ ऊपर करे, सब ये मूवी देखा, ये किसका देखा, फलाना फलाना एक्टर का, कितना पैसा खर्चा किया, 500 रुपया खर्चा किया, 300 रुपया टिकट का, 100 रुपया पॉपकॉर्न का, 50-150 रुपया समोसा का। मतलब ये 600 रुपये में एक तू अगर बॉल लेगा हैंडबॉल का, तो तेरे को एक हैंडबॉल 1 साल तू उसके साथ खेल सकता है। मूवी तो यस तूने 2.5 घंटे में पैसा बर्बाद कर दिया, एक घंटा 40 मिनट। तब ये पहला उनको, फिर उनको याद आता है, हाँ यार बराबर सर बोल रहे कि 500 और 600 रुपए में एक बॉल लेंगे, तो अगर एक बच्चा एक बॉल लेगा, ऐसे 10 बच्चे 10 बॉल लेंगे तो उसका मोबिलिटी फास्ट हो जाती है ना, खेलने के लिए भी जरूरी है, एक बॉल यस से नहीं खेल सकते। रिपीटेशन कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हैं उसके साथ। वॉलीबॉल का भी सेम यस केस है, हैंडबॉल का भी सेम। तो दो जन में एक बॉल मिला तो उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा बार हो जाएगा ना। एक ही बॉल से 50 जन खेलेंगे तो उसके हाथ में बॉल कितने बार आएगा एक घंटे में? सर, कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप जो हैंडबॉल प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं? बड़ा कठिन सवाल है। एडवाइस मतलब क्या? सिर्फ फॉर फिटनेस आज पब्लिक जिम में पैसा भर के जिम जाते हैं, राइट? 10-10 हजार रुपया भर के। इधर तुमको फ्री खेलने को मिल रहा है स्कूल से, क्यों नहीं खेले? क्यों नहीं यूटिलाइज करे? कुछ तो गेम हाँ खेलो। आई एम नॉट टेलिंग ओनली हैंडबॉल, यू कैन प्ले एनी गेम, ऑल गेम्स आर फैंटास्टिक, वेदर इट इज जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हर गेम की अलग एडवांटेजेस है, हर गेम का मजा अलग है, एंड हर गेम इज इक्वली इंटरेस्टेड एज व्हाट अदर गेम्स। हर गेम में इंटरेस्ट है, वेदर वेदर अब लोग बोलते हैं ना क्रिकेट जैसा इंटरेस्टिंग गेम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर गेम में इंटरेस्ट। और रूल्स ही ऐसे यस बनाए ना कि यू नेवर नो क्या होगा, unless it is a यस one-sided game, unless it is a one-sided. हाँ So boys should keep on playing some or the other game. They should take as a love, as a passion for some game at least. Minimum one game. I have to taken 2 games. मैं तो athletics भी करता था, shot put, javelin throws भी करता था, मगर फिर सब tally नहीं होता था. I was a good trekking. I was doing lot of trekking in 85 when I was in college. I was in the university ओके trekking team also. मगर सब चीज नहीं कर पाएगा ना, टाइम कंस्टेंट है ना अपने पास।
यस, हाँ, आज 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 Correct. मैं भी हैंडबॉल वॉलीबॉल खेल पाया, नसीब अच्छा है, फिटनेस भी रहा, दोनों गेम खेल पाया। आई टू प्ले फॉर खालसा जिमखाना हैंडबॉल एंड अपना मंसिदर स्कूल के लिए वॉलीबॉल खेलता था। ठीक है, वो हो गया, मगर आगे के जनरेशन को आई डोंट थिंक दे विल, वेरी रेयर कोई ऐसा दो गेम, एक गेम खेलने का ही मुश्किल है, बिकॉज लॉट ऑफ गैजेट्स आए हुए हैं ना। माय टीम विच वाज विनर्स इन इंटर स्कूल, they could win हाँ, in inter college junior also, they could win the district sports office tournament, but they couldn't compete in Maharashtra state यस, because वो लेवल पे प्रैक्टिस उतनी करनी चाहिए ना। Correct. you're qualifying for state, you should practice 2 sessions at least minimum in a day। हाँ, 3-6 घंटा खेलने का कैपेसिटी चाहिए प्लेयर, तभी जाके Yes. परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से परफॉर्मेंस। सो एडवाइस तो ये रहेगा कि दे शुड कीप at least one game in their pocket every night, and it helps a lot, let me tell you, as my experience of 46 years of volleyball and 40 years of handball, 41 years of handball, मेरा टोटल 86 years हो गया अभी स्पोर्ट्स ऐड करोगे ओ हाँ, ऐसे देखो ऐसे आएगा। हाँ, तो मगर I have loved, I'm still enjoying, I'm still playing, मजा आ रहा है। एंड इसकी कोई there is no substitute for that, ये मजा का हाँ, कोई सब्सिट्यूट नहीं पैसे। तो मेरे को बोले मैं Yes. 10,000 रुपए में मुझे खेलना जरूरी है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू हाँ, सुबह नहीं करूंगा, मेरा आज खेलने का सैटरडे संडे आई प्ले फॉर 3 hours 7:30 to Oh. 11। तो Yes. फिर वो पैशन है ना, एक लव है और एडिक्शन, यू कैन हाँ, से एडिक्शन आल्सो एट द सेम टाइम, और वो Yes. रहना चाहिए, कुछ तो एडिक्शन रहना चाहिए। जरूरी है सर, जरूर, बहुत जरूरी है हाँ, आज के टाइम में, तो जरूरी। बहुत जरूरी है। अरे इतना माइंड मजा आता है ना। आज आई एम आल्सो प्लेइंग, आई एम नियरिंग 60 नाउ, मगर आई एम प्लेइंग विद 21 years बॉयज। तो वो लोग भी हाँ, सर आप अभी भी खेल सकते हो, मतलब खेल रहा हूँ अभी, क्या करूँ, भगवान की दया हाँ, से फिटनेस है, जब तक फिटनेस है तब तक खेलते रहने, छोड़ने का खेलते रहेंगे, हाँ। क्या उसमें शर्म न करने का, कि फिटनेस आप डाई मारोगे तो चार लोग ताली ही बजाएंगे ना, ये बूढ़ा अंकल भी हाँ। डाई, तो मजा अलग है। फैंटास्टिक, मजा आता है खेलने को। यस सर, ऑन दिस नोट वी एंड द सेशन सर। थैंक यू वेरी काफी मच अच्छा फॉर था, काफी कुछ सीखने मिला सर आपसे, एंजॉय में। कुछ जानने मिला। 86 years का एक्सपेरिमेंट तो कोई एंजॉय होएगा ही ना। ओ सर। और भी कितने बातें, वी कैन टॉक, आई कैन टॉक फॉर 24 hours ऑन वॉलीबॉल। जितना इतना मन बड़ा करे, ढेर मीटिंग ही सारा नहीं है सर। एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं बोलता रहा हूँ, मतलब आई कैन टॉक हाँ, फॉर, पैशन है ना, अपना लव है वो। यस सर, श्योर सर। नाइस टॉकिंग टू यू, यस मिलते सर, हैं। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर।